Namaste everybody. How are you? Once again welcome to my class. I think you will be fine. In my view, you are working hard at your studies, at your homes, because without working hard, to read literature is not possible. We are reading the poem Elegy written in country churchyard, penned by Thomas Gray. We have read that the poet, sitting in the country churchyard of Hampshire, talks various aspects of life and situation of environment. From the very beginning, poet tries to create a solemn or serious environment through his words. He tries to draw a picture of seriousness in the graveyard while he was sitting under the shapeless trees, and in front of him there are so many scattered and torn graves in which the poor forefathers, poor ancestors are lying dead. He tries to draw so many pictures like all to create a serious environment. And we have read so many stanzas of this poem. Our next stanza or our next lines are here on the board. So let's start our next lines. This poem is too long to read, but ultimately we have to read these lines or this poem. Okay, let's start the today's class. Look at the board. देखिए हमने बहुत सारे स्टेंजास पढ़ लिए हैं. पोएम थोड़ी लंबी भी है और जब चीज़ें बहुत लंबी हो जाती हैं तो थोड़ी बोरिंग भी होने लगती हैं, लेकिन चूँकि पढ़ना है तो फिर बोरिंग और इंटरेस्टिंग का फर्क नहीं पड़ता. देखें लाइन्स को, पहले इनके वर्ड्स देखें, तसल्ली से समझें. देखिए, Can storied urn or animated bust back to its mansion call the fleeting breath? Can honor voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with the celestial fire, hands that the road of empire might have swayed or waked to ecstasy the living liar. These are our today's line. हम इन लाइन्स का अध्ययन करेंगे. That is might. देखें ग्लोसरी, देखें डिफिकल्ट वर्ड्स. कैन स्टोरीड अर्न. स्टोरीड अर्न का मतलब है मॉन्यूमेंट्स with inscription. Inscription telling the life story or with life story.
और एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो स्पिरिटेड, लेकिन यहां है लाइफ लाइक स्टेचू, लाइफ लाइक स्टेचू। कैन स्टोरी अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैसन। मैसन का शाब्दिक अर्थ अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो एडिफाइस होता है, लेकिन यहां से यहां तक टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, टू ब्रिंग बैक टू लिविंग स्टेट, कॉल्ड द फ्लीटिंग ब्रीथ। फ्लीटिंग का मतलब होता है ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग ब्रीथ का मतलब है शॉर्ट लिव्ड लाइफ, शॉर्ट लिव्ड लाइफ। एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें, उसके बाद पोएम को पूरा पढ़ेंगे। कैन ऑनर वॉइस provoke, stimulate the silent dust, dead body or corpse, flattery, sycophantry, flattery means sycophantry, shows, please or admire, the dull cold air of death। डल कोल्ड एयर का देखो शाब्दिक अर्थ देखोगे तो आप देखोगे कि ठंडे कान, नीरस ठंडे कान, बट हियर insensible, insensible of death। Perhaps in this neglected spot is dead, lying dead। Neglected spots here means graves। Perhaps in this, perhaps here surmise, some hurt ones pregnant, full of celestial fire, it means God gifted, or second heaven sent inspiration। Hence that the road of empire might have swayed or waked to ecstasy the living liar। इनका पूरी का अर्थ निकलेगा एक साथ, देखते हैं इसके अनुवाद को। क्या अनुवाद है? कैन स्टोरीज अर्न और एनिमेटेड बस्ट, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंसन, कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। कैन स्टोरीड अर्न, अर्न का मतलब होता है, शाब्दिक अगर बात करें तो पिक्चर होता है। पिक्चर से मेरा मतलब है अर्न मीन्स पिक्चर। कलश हम सब जानते हैं, कलश घड़ा।
पिक्चर होता है इसका शाब्दिक अर्थ। अब देखिए यहां पर इसके अर्थ का क्या मतलब है। कैन स्टोरीड अर्न, स्टोरीड अर्न का मतलब है, तो ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा विशेष ध्यान देकर समझनी पड़ेगी। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट, स्टोरीड अर्न मॉन्यूमेंट विद द इंस्क्रिप्शन विद द लाइफ हिस्ट्री। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है स्टोरीड अर्न, कि जो अर्न है आफ्टर क्रीमेशन, हैविंग एन अर्न हैविंग असेस आफ्टर क्रीमेशन। देखो हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग गांव से ही हैं लगभग। अस्थि कलश होता है, अस्थि कलश, जिस कलश में मृत व्यक्ति के अशेष वगैरह को रखा जाता है। यहां उसका मतलब है कैन स्टोरीड अर्न, अर्थात ऐसा कलश जिसमें कि अशेष हैं। और इसका एक अर्थ अगर निकालने की हम कोशिश करें तो अशेष आफ्टर क्रीमेशन, या फिर ऐसा अस्थि कलश जिस पर, जो कि एक मॉन्यूमेंट है, अस्थियों से भरा कलश, मॉन्यूमेंट्स विद द इंस्क्रिप्शन, जिस पर लिखा हुआ है या कि जिस पर कुछ मढ़ा हुआ है, ऐसा अस्थियों से भरा कलश, जिसको साहित्य की भाषा में यहां मीनिंग क्या होगा, मॉन्यूमेंट्स विद द इंस्क्रिप्शन विद द लाइफ स्टोरी, लाइफ हिस्ट्री, जीवन के इतिहास से वर्णित अस्थि कलश, एक शब्द, और अथवा एनिमेटेड बस्ट। हमने पिछली जो वो थी उसमें पढ़ा था कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, कि इनकी जो डेड बॉडीज हैं, ग्रेव हैं, उन पर कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं लगा है। पिछली वीडियो में हमने उसको ढंग से समझाया। आगे कभी कह रहा है कि एनिमेटेड बस्ट, अस्थि कलश जिसमें लाइफ हिस्ट्री इंस्क्रिप्ट है, और एनिमेटेड बस्ट लाइफ लाइक स्टेच्यू, या फिर ऐसी एक स्टेच्यू जो जीवंत हो, बिल्कुल जीवित दिखने वाली स्टेच्यू हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो। अस्थि से भरा कलश जिसमें उसके पूरे जीवन का इतिहास है, वो मॉन्यूमेंट्स, अथवा एनिमेटेड बस्ट, यहां पर लगाई हुई कोई भी जीवंत प्रतिमा। दो, या तो ये अथवा ये। बैक टू इट्स मेंशन, मेंशन का शाब्दिक अर्थ एडिफाइस होता है हवेली। वी ऑल नो मेंशन का शाब्दिक अर्थ होता है हवेली, लेकिन यहां पर है ब्रिंग बैक टू लिविंग स्टेट, कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। क्या ये दोनों स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट, कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, ट्रांजिटरी जो जीवन है, क्षणभंगुर जो जीवन है, शॉर्ट लिव्ड लाइफ है, कॉल बैक टू इट्स मेंशन, क्या उन्हें ये जीवित अवस्था में ला सकता है? पहला क्वेश्चन। मैं समझता हूं समझ में आया होगा कि कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन, कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, इस क्षणभंगुर जीवन को ये एनिमेटेड जीवंत स्टेच्यू, प्रतिमा और अस्थियों से भरा उसका कलश, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्ट मॉन्यूमेंट्स, क्या उन्हें जीवित अवस्था में ला सकता है? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। दूसरी लाइन देखिए, थर्ड लाइन, कैन ऑनर्स वॉइस, क्या उनके सम्मान में
कमेंट्स। एडमिरेशन से भरे कमेंट्स, क्या उनके सम्मान में बोली हुई कुछ बातें प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या इन मृत व्यक्तियों को स्टिमुलेट कर सकती हैं, उत्तेजित कर सकती हैं, पुनः जीवित कर सकती हैं? क्या इन लोगों के सम्मान में कैन ऑनर वॉइस प्रोवोक, क्या इन लोगों के सम्मान में की हुई कुछ बातें प्रोवोक स्टिमुलेट कर सकती हैं, उत्तेजित कर सकती हैं, जागृत कर सकती हैं द साइलेंट डस्ट, इन मृत लोगों को? और फ्लैटरी या फिर साइकोफेंट्री, चापलूसी, सूद प्रसन्न कर सकती है, जागृत कर सकती है द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, ऐसे कानों को जो मृत्यु से इनसेंसिबल हो गए हैं, मृत्यु के कारण जिनकी क्षमता कानों की सुनने की नष्ट हो गई है, उन कानों को, उस जीवन को जीवित कर सकते हैं चापलूसी भरे शब्द? क्या चापलूसी भरे शब्द उसको जीवन प्रदान कर सकते हैं? देखिए, इन तीनों, ये जो 4 लाइन्स है, हमने अभी एक क्वाड्रेंट पढ़ा है 4 लाइन्स, आप इनको अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि इनमें किए हुए ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपके पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास कुछ है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर लेखक खुद जानता है, कभी खुद जानता है, और वो ये आशा करता है कि सामने वाला भी वही उत्तर देगा जो मैं देना चाहता हूं, मेरे मन मुताबिक ही उत्तर आएगा सामने वाले का। ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनको रेटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। रेटोरिक क्वेश्चन, या रेटोरिक क्वेश्चन का प्रयोग करते हुए लेखक ने कहा, पोएट कहता है, रेटोरिक क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके जो आंसर्स हैं वो वही होते हैं जो स्वयं कवि चाहता है, और जो उत्तर कवि के स्वयं के पास होते हैं रेटोरिक क्वेश्चंस कहलाते हैं। इन चारों लाइंस में, in these 4 lines, the poet uses rhetoric questions. मैं समझता हूं ये 4 लाइंस आपकी समझ में आए होंगे। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट, क्या ये पिक्चर इन विच देयर इज असेस आफ्टर क्रीमेशन, जिसमें कि मृत्यु के बाद रखी हुई उनकी अस्थियां हैं, ये सजे हुए जो अर्न है, कलश है, कलश सामान्य नहीं होता, थोड़ा सजा हुआ होता है, यू नो इट, ये अथवा जीवंत ये प्रतिमाएं, बैक टू इट्स मेसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, इस क्षणभंगुर जीवन को वापस ला सकते हैं जिंदगी में, अर्थात दोबारा क्या ने जीवित किया जा सकता है। देखो, शाब्दिक अर्थ कुछ है और वर्ड मीनिंग कुछ है। मेसन का वर्ड मीनिंग एडिफाइस है, लेकिन यहाँ है नहीं कुछ भी हवेली से लेना देना, ठीक है, हवेली उस शरीर की मतलब यूज कर दिया है कवि ने। कैन ऑनर वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या जो ये ऑनर की वॉइस है उनके सम्मान में अगर हम कुछ कहें तो वो साइलेंट मृत कॉप्स, डेड बॉडीज को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, जागृत नहीं कर सकते। और फ्लैटरी शूथ द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण जो इनसेंसिबल हो गए हैं, जिनके ईयर, कान, जिसे सुनने की क्षमता मृत्यु ने छीन ली है, क्या उनको प्रसन्न कर सकती है चापलूसी, अर्थात उनको जीवन दे सकती है? नहीं। ओके, दैट इज रेटोरिकल क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 4 लाइंस देखें। Perhaps in this neglected spot, शायद, perhaps in this neglected spot,
शायद परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट, शायद इन मृत ग्रेव्स में ये जो हैं इज लैड पड़े हुए हैं, शायद इन ग्रेव में, इन चर्च यार्ड के अंदर मृत लोग पड़े हुए हैं, ऐसे मृत लोग पड़े हुए हैं। पर परहैप्स सरमाइज, जो पोएट है सरमाइज करता है, संदेह प्रकट करता है, शंका जाहिर करता है कि शायद जो ये ग्रेव्स है ना, इनके अंदर ऐसे लोग पड़े हुए हैं। कैसे लोग? देखें कैसे लोग। Some hurt once pregnant with the celestial fire. Some hurt, इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। Some hurt का मतलब है यहाँ forefathers और ancestors. Some hurts once pregnant, इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कभी भरे हुए थे with the celestial fire, God gifted, heaven sent inspiration, ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा के द्वारा। इनमें जो मृत लोग हैं, इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा से बिल्कुल भरे हुए हों। शंका जाहिर करता है कि इनमें बहुत ही प्रतिभाशाली लोग भी हो सकते हैं। Hands that the rod of empire might have swayed, hands that, और इनमें वो हाथ भी हो सकते हैं। hands that, इन मृत कब्रों में, ग्रेव्स में वो हाथ भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। the rod of empire, जो प्रभुत्व स्थापित करते, might have swayed, प्रभावशाली ढंग से संसार पर, अर्थात ऐसे लोग भी हो सकते थे जो पूरे संसार पर प्रभावशाली ढंग से इस संसार पर, इस दुनिया पर एम्पायर स्थापित कर सकते थे, कैप्चर द किंगडम, साम्राज्य चला सकते थे। इतने शक्तिशाली हाथ भी हो सकता है इन ग्रेव्स के अंदर हों। और वेक्ड टू एसिस्टेसी द लिविंग लायर, एसिस्टेसी हेवनली जॉय और फेलिसिटी, और वेक्ड टू एसिस्टेसी द लिविंग लायर, और इनके अंदर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो संभवतः बहुत बड़े संगीतज्ञ बनते। जो मरे हुए लोग हैं, इनके अंदर ऐसे लोग भी हो सकते थे जो कि एक बहुत विशाल साम्राज्य चला सकते थे प्रभावशाली ढंग से, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एक बहुत बड़े लिविंग लायर, बहुत बड़े जीवंत संगीतज्ञ बन सकते थे। दैट इज अवर वर्ड मीनिंग। देखिए, Perhaps in this neglected spot, शायद इन तिरस्कृत, इन अनऑनर्ड जो स्पॉट्स हैं, ग्रेव्स हैं, उनके अंदर इज लेड, ऐसे लोग भी मृत पड़े हुए हो सकते हैं। कैसे? Some heart once pregnant with celestial fire, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके अंदर ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा हो, बहुत ज्यादा भरी हुई हो, प्रेग्नेंट, फुल ऑफ, भरा होना। Hands that rod of empire might have swayed, ऐसे डोमिनेशन, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, रॉड ऑफ एम्पायर, जो साम्राज्य चला सकते थे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। और वेक्ड टू एसिस्टेसी द लिविंग लायर, और ऐसे लोग भी इनमें मृत हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छे संगीतज्ञ, म्यूजिशियन बन सकते थे। कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोग पड़े हुए हैं इन ग्रेव्स में। द पोएट डिस्क्राइबिंग द मिसफॉर्चून ऑफ द forefathers that are lying dead in the scattered graveyard, poet says that
can the person who are lying dead be awaked? He questions himself or other person that the picture in which assess after the cremation and a statue that is erected on the death on the grave of the forefathers can bring back to living state. And he says that any voice, any song which is sung in the honor of this person can make them active and can make them living. He, in the rhetorical question, asked the readers and asked himself that any flattery, any sycophancy can please the ears which are insensible after the death. And that is the style of rhetorical question in which the poet asks questions and the answer he knows also that. And he says that he surmise, the poet surmise that the graves in which the forefathers and ancestors are lying, and these graves are neglected and scattered under the shapeless tree in the obscurity. He says that he surmises that there may be some person who may have some celestial fire. He means to say that there may be some person who has heaven sent inspiration or God gift, and he further surmises that there may be lying some extraordinary and strongest person of the world who can dominate all the world effectively. And he surmises that there may be some person who might be the greatest musician, and they lost their all the quality in vain, and they died in obscurity without getting any name and fame. That is our English explanation. That is our today's class. इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो कल होगी. आप इसे 1-2 बार पढ़ें. थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइन है, समझ में निश्चित रूप से आ जाएंगी. इंग्लिश समझ में आए ना आए, लेकिन हिंदी जरूर समझ में आ जानी चाहिए, जिससे हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपके समझ में आएगा. जब एक्सप्लेनेशन लिखाएंगे तो आपको लर्न करनी है, तो उसमें ये चीजें आपको मदद देंगे. ओके, सब लोग सुरक्षित रहिए. ये बार बार कहना पड़ता है क्योंकि वी नोटिस दैट कि जो लोग हैं वो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना चला गया है, बट द केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन राजस्थान. सो टेक केयर of yourself and be safe, stay home and keep learning with us. Thanks. Namaste everyone.